solve next question. We will solve question number 10. Solve it in the book only. Solve it like question number 9. This time no mistake. Face value of a bond is rupees 1000. Coupon rate is 10% per annum. Payable annually on the outstanding bond amount. Redemption shall be carried out at rupees 500 each at the end of year 4 and year 5. Find out the price of the bond if the investor expects 12% per annum return. So try again. This time the total life of the bond is 5 years. First, second, third year, no redemption. So only coupon. Then in the fourth year, 500 rupees face value will be redeemed. Okay, please try yourself. Check the answer if you have done. First you will try, then I will give you the answer. Okay, you should learn to write, think and fast. Okay, write fast, think fast. Is it over now? Okay. Now you can check the answer. The answer is like this. For 1 to 3 years, 1000 rupees, coupon is 100. In the fourth year, the outstanding amount is 1000, coupon will be still 100 rupees. And fifth year, 500 rupees will be the amount on which interest will be calculated. So that is 50 rupees. Redemption is nil, 500, 500. Total cash flow will be 100 rupees, 600 rupees, 550 rupees. Are you getting? Just try करो. जहाँ जहाँ गलती कर रहे हो लिखते जाना है. And then calculate the discounting factor. $933.55. So we have computed the value of how many types of bond now? Coupon bond, perpetual bond, self-amortizing bond. क्या बच गया है? Zero coupon bond. So next is zero coupon bond. As you know, zero coupon bond or deep discount bond, no interest is paid. Directly the redemption value is given on maturity date. That means there is only one cash flow, and that is the redemption value. So to find out the present value of a deep discount bond or a zero coupon bond, you just have to calculate the present value of the redemption value. Like this question number 11. A deep discount bond is issued for a maturity period of 10 years. तो इसकी maturity कब होगी? 10 साल बाद. And having a par value of 25,000. फेस वैल्यूज 25,000. तो आपको डीप डिस्काउंट बॉन्ड का फीचर मालूम होना चाहिए कि ऐसे बॉन्ड को हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं और मेच्योरिटी वाले दिन फेस वैल्यू रिडीम करते हैं. तो यानी 10 साल बाद इन्वेस्टर को 25,000 रुपीज अमाउंट मिलेगा. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ DDB
given that the required rate of return is 15%. So इसका मतलब एक सिंपल क्वेश्चन है जो सीपीटी में अगर पूछा जाए 25,000 रुपए की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है 15% डिस्काउंट रेट से और लाइफ 10 ईयर हो तो क्या आंसर करेंगे? 6,180. Is it 6180? Yes. तो ये बहुत इजी है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज द फेस वैल्यू अपॉन 1 प्लस r to the power n, which is equal to 25,000 upon 1.15 to the power 10. Is it right? And when you further simplify it, the answer is 6180. Just check it. 6180 है. चेक कर रहे हैं ना या कॉपी कर रहे हैं? चलो ठीक है, अभी एक मौका आपको भी मिलना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 12. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर आप सॉल्व करना. उसी बुक में सॉल्व करना है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1,000 redeemable after 3 years with 14% yield per annum compounded semi-annually. And second question, in case yield is 14% compounded annually, what is the price? तो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक स्मॉल डिफरेंस है, एनुअल एंड सेमी एनुअल कूपन आपकी यील्ड. तो पहले क्वेश्चन में आप क्या करो, 7% डिस्काउंट रेट यूज करो और नंबर ऑफ पीरियड 6 कंसिडर करो. और दूसरे केस में आप 14% डिस्काउंट रेट कंसिडर करो और नंबर ऑफ ईयर्स 3 एज यूजुअल. जैसे सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने सॉल्व किया था. फर्स्ट पार्ट में केस 1 यील्ड इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. यील्ड इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, ठीक है. हेडिंग लिखना है, कैलकुलेशन ठीक से लिखना है. यील्ड इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू अपॉन 1 प्लस r/2 to the power n into 2. Okay. फेस वैल्यू कितनी है? 1000 और यील्ड कितना है? 14 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3 into 2. फाइनल आंसर 66.7 666.74. ओके 34 666.34. Case 2, write down. Yield is compounded annually. Case 2, yield is compounded annually. This is like a normal question. Face value upon 1 plus r to the power n. Annual compounding रहा तो r को per annum लेना है, number of years को as it is रखना है. 1000 upon 1.14 to the power 3. So this is 670.97. Rupees 674.97. Rupees 674.97. Is it right? Now come to next part of this chapter. Calculation of return. Calculation of return. Let me check the answer. 666 and 675. 4 ठीक है, कोई बात नहीं. प्लस माइनस सम पैसे और 1 रुपी डिफरेंस इज अलाउड. हो गया आंसर? सबने सही लिख लिया? एनी डाउट? एनी डाउट बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 to 12? नो.
अब पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट होता है रिटर्न. हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न. वन return is called holding period return. That is the rate of return you have earned during this period when you are holding a bond. With the help of this example only, I'll explain you the concept of holding period return. Very simple question number 13. Source, write down RTP again. Revision test paper. A have purchased a bond at a price of rupees 800. With a coupon payment of 150 and sold at 1000. What is his holding period return? Second question बाद में. Okay, formula सब भूल जाओ. Just apply your basic common sense and tell me, if you have purchased a bond at 800 rupees, you received a coupon payment of 150 rupees and then you sold it for 1000 rupees. What is the rate of return you have earned? 50%. 43.75%. Is it right? आराम से सोचना है, हड़बड़ी नहीं करनी है. एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन देखो, 800 रुपये आपने आज इन्वेस्ट किया, 150 कूपन मिला और 1000 में आपने बॉन्ड को सेल कर दिया. तो आपको दो इनकम हुई है इस बार. एक तो कूपन मिला 150 और आपको कैपिटल गेन हुआ 200 रुपीज़ का. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड 200 रुपीज़. तो टोटल इनकम हुई कितनी हुई आपको इस पीरियड में, जिस पीरियड में आप इस बॉन्ड को होल्ड कर रहे थे, आपको टोटल इनकम कितनी हुई 350. और 350 इनकम हुई कितने अमाउंट के इन्वेस्टमेंट पर 800 रुपीज़ पे. सो 350 बाई 800, द आंसर इज 43.75. इज इट राइट? सो इट इज लाइक रियलाइज यील्ड फॉर्मूला इन केस ऑफ शेयर. कल जो आपने एक रियलाइज यील्ड का फॉर्मूला देखा था वही है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आपको जस्ट देखना है कि अगर हम 800 इन्वेस्ट करते हैं, 150 रुपये कूपन मिलता है और बाद में हम उसको 1000 पे बेच रहे हैं, तो हमें कितनी इनकम हो रही है? 350 रुपये की इनकम हो रही है. लेकिन हमें रिटर्न परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होता है. इज इट राइट? सो डिवाइड बाई 800. सेकेंड क्वेश्चन, अभी लिखना कुछ नहीं है, जस्ट वेट. इफ द बॉन्ड इज सोल्ड फॉर रुपीज 750 आफ्टर रिसीविंग रुपीज 150 एज कूपन, देन व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न? तो यहां पर क्या हो गया, आपको 150 रुपीज का कूपन मिला, गेन हुआ, लेकिन बॉन्ड के बेचने पर आपको 50 रुपीज का लॉस हो गया है. तो आपकी नेट इनकम 100 रुपीज हुई. 100 रुपीज इनकम हुई 800 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर. तो 12.5% आंसर आ रहा है. ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए वहां पे. फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रखेंगे, स्पेस कम है. होल्डिंग पीरियड रिटर्न परसेंटेज. फॉर्मूला भूल भी गए कोई बात नहीं. इनकम इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. I प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0. ये फॉर्मूला इक्विटी शेयर के चैप्टर में से हम बोलते हैं रियलाइज यील्ड. यहां पर होल्डिंग पीरियड रिटर्न. I is interest amount, P1 is price of the bond at the end of the year or at the end of the period, then P0 is price of the bond at the beginning of the year. After writing the formula, then you write answer 1. होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू, होल्डिंग पीरियड रिटर्न परसेंटेज इक्वल टू 1 न्यूमरेटर में लिखेंगे आई की जगह 150 प्लस P1 की जगह 1000 माइनस 800. ड्रॉ वन लाइन. इन द डिनोमिनेटर यू राइट 800. So the answer will be 43.75%. Then write down answer B. Same format.
150 plus 750 minus 800. In the denominator, write upon 800. Solve. You'll get 12.5%. This gives you how much rate of return you have earned during this period. Now next very important concept we are going to learn is called yield to maturity, YTM, जो हमने बीच बीच में एक दो जगह यूज किया था. Yield to maturity. What is the meaning of yield to maturity? तो पहले ये सब बाद में देखते हैं. सपोज आपने मान लो एक बॉन्ड आज 960 में परचेज किया. बॉन्ड से आपको 100 रुपीज कूपन मिला 4 साल, और 5th ईयर में आपको 1100 रुपीज कूपन प्लस फेस वैल्यू 1000 रुपीज मिली. ये आपने अमाउंट आज इन्वेस्ट किया ईयर 0 में, और आपको ईयर 1, 2, 3, 4, 5 में ये कैश इनफ्लो हुआ. तो व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी? यील्ड टू मैच्योरिटी इज दैट डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ future cash inflow to the present value of cash outflow. Is it right? Or you can say it is that rate of return the investor expects to earn if he holds the bond till maturity. Yield to maturity. If he holds the bond till maturity, how much rate of return you are expected to earn? So आपको लगता है कि हमने ऐसा कुछ पहले कभी IPCC में किया है? We are trying to find out a rate of return which will equate the present value of future cash flow with the present value of cash outflow today. That is called internal rate of return. That is called internal rate of return. So in capital budgeting chapter we call it internal rate of return. That rate of return which you are expected to earn if you hold the bond till maturity, which means it is that rate of return which will equate the present value of future cash inflow with the present value of cash outflow. Okay, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? That depends on the type of problem. If it is a coupon paying bond, then we can apply the formula which is written in your book, C into 1 minus T plus RV minus NP upon N upon RV plus NP by 2. फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है ना? कुछ कहाँ देखा था? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, एंड डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर सेम. डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर सेम इंस्ट्रूमेंट. इज इट राइट? सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फॉर्मूला इज नथिंग बट द YTM, the rate of return the investor expects to earn. What is C here? Coupon. T is tax rate. If you are an investor, you will pay tax. If you are a company issuing bond, you will save tax. So in either case, your income will be or expenditure will be net of tax. Redemption value minus net proceed. Net proceed की जगह current price of the bond लेना है. Divided by number of years upon RV plus NP by 2. As I told you yesterday in the chapter on cost of capital, this formula gives you approximately right answer, but it does not give you the accurate answer because it ignores time value of money. You are trying to add RV plus NP by 2, but RV means after 10 years, NP is today, so some time value of money is ignored but allowed. ये फॉर्मूला आप हर टाइप के क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड हो तो उस समय ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे. इज इट राइट? तो फिर वैसे केस में हम IRR का फॉर्मूला यूज करेंगे. IRR का फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हो. इज इट राइट? ये फॉर्मूला कूपन पेइंग बॉन्ड के लिए यूज करना है. परपेचुअल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे कि परपेचुअल बॉन्ड में नंबर ऑफ ईयर्स ही नहीं रहता है. इज इट राइट? जीरो कूपन बॉन्ड में यूज नहीं कर पाओगे, कूपन नहीं होता है. इज इट राइट? सो सबके लिए एक ही सोल्यूशन है IRR. कूपन बॉन्ड के लिए 2 सोल्यूशन है, IRR और फॉर्मूला मेथड. इज इट राइट? एक एग्जांपल हम बुक में ही सॉल्व करेंगे. आपको सिर्फ चेक करना आंसर सही है नहीं.
Suppose an investor is considering the purchase of a 5-year rupees 1000 bond bearing a coupon rate of 7% and the current market price of the bond is rupees 960. Then what would be the investor's required rate of return? तो अब क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, अब हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम है बॉन्ड की, डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना. अभी तक आप क्या कर रहे थे, 13 नंबर क्वेश्चन के पहले तक 12 नंबर तक डिस्काउंट रेट दिया हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते थे. अब क्या होगा, अगले कुछ क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दिया होगा, डिस्काउंट रेट आपको फाइंड आउट करना है. दैट इज योर रेट ऑफ रिटर्न दैट यू रिक्वायर. So you can solve this question by using the formula because it's a coupon bond. So write down the formula: C into 1 minus T plus RV minus NP upon N upon RV plus NP by 2. Then put the value. Tax नहीं हो, ignore करना है. तो 7% of 1000 70. Then redemption value is 1000 minus 960. Divide by number of years 5 upon 1000 plus 960 divided by 2. That is average funds used. So when you solve it, कितना आ रहा है आंसर? Around 7.96 के आसपास आ रहा है ना. तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया 8% अप्रोक्सीमेटली. इज इट राइट? अब एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व कीजिए. इस बार नोटबुक में सॉल्व करना होगा, ठीक है? वहां पे स्पेस कम है. ओके, एवरीबॉडी रेडी? क्वेश्चन नंबर 14. IRR you have to find out. That rate of discount at which present value of cash inflow and cash outflow are equal. यानी इस बॉन्ड को हम मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होता है. A 5-year bond with 8% coupon rate and maturity value of rupees 1000 is currently selling at 925. What is its YTM? Without solving, you tell me whether the answer will be 8%, more than 8% or less than 8%. The answer is more than 8% because the bond is trading below the face value. तो अभी आपने golden rule number 1 देखा था. If the required return is more than coupon rate, present value is less than face value. तो क्वेश्चन में present value 925 दिया हुआ है which is less than face value. इसका मतलब डिस्काउंट रेट more than 8% होना चाहिए. तो जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर 8 से ज्यादा आना चाहिए. Now solve. Write in your notebook formula. Interest rate or interest amount C plus face value minus current price upon number of years. Okay? Solve करेंगे. Any answer? 9.87% approximately. Is it 9.87% approximately? इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करेंगे आज IRR मेथड से. Is it right? Internal rate of return formula used in capital budgeting chapter. याद है? सभी को IRR कैलकुलेशन याद है? भूल गए या पढ़ा ही नहीं? कितने लोगों ने पढ़ा ही नहीं आज तक? पहले वैसे लोग हाथ उठाए. सबने पढ़ा. That's good. तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ओके. तो IRR में हम लोग क्या करते हैं? We have to find out the discount rate. We have to find out the discount rate given the present value. What is the present value? Present value of cash inflow should be equal to present value of cash
outflow, which means the net present value should be 0. Which means net present value should be 0. Net present value means present value of inflow minus present value of outflow should be 0. तो इस बार हमें आंसर मालूम है कि हमारा एनपीवी 0 होना चाहिए. What should be the discount rate? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं. ओके, जिसको मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं interpolation technique. Is it right? Interpolation technique in mathematics means you will assume a rate of discount as if this is the IRR. क्वेश्चन देख के आपको लगना चाहिए कि इसका IRR क्या होना चाहिए. जैसे इस क्वेश्चन को देख के 8% कूपन रेट है लेकिन डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो IRR होगी वो 8 से थोड़ी ज्यादा होगी, तो हम अज्यूम करेंगे 9 या 10%, समथिंग अराउंड दैट. इज इट राइट? उस अज्यूम डिस्काउंट रेट से पहले एनपीवी कैलकुलेट करेंगे. अगर एनपीवी 0 आ गया तो वही आपका आंसर है. अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट थोड़ा इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमें 0 तक पहुंचना है. अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो आज मैंने आपको गोल्डन रूल नंबर 4 लिखाया था, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू. तो आपको एनपीवी 0 तक लाने के लिए डिस्काउंट रेट इंक्रीज करना होगा. और अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट थोड़ा कम करेंगे. उसके बाद हम लोग एक इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इंटरपोलेशन फॉर्मूला मींस फाइंडिंग अ अननोन नंबर बिटवीन टू नोन नंबर्स. फाइंडिंग एन अननोन नंबर बिटवीन टू नोन नंबर्स. इज इट राइट? तो हम कोशिश करेंगे कि एक डिस्काउंट रेट पे हमारा आंसर पॉजिटिव आए और दूसरे डिस्काउंट रेट पे हमारा आंसर नेगेटिव आए. इसका मतलब हमारा जो आरआर होगा उन दोनों रेट के बीच में होगा. इज इट राइट? एंड देन विल अप्लाई द मैथमेटिकल इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर. सो लेट अस ट्राई. इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर लिया है फॉर्मूला मेथड से. फॉर्मूला मेथड से हमारा आंसर है 9.87%. तो आरआर टेक्निक से आंसर कितना आना चाहिए, अराउंड दैट ओनली. ऐसा नहीं कि आरआर से 15 आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि यहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस देते. जो कैश फ्लो जब होगा उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर की जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. इज इट राइट? तो थोड़ा सा आंसर वेरी हो सकता है, इसलिए हमने इस बार 9% स्टार्ट किया और 10% हायर रेट लिया है. आपको एक साथ दोनों रेट एग्जाम में नहीं यूज करना चाहिए. पहले 9% से कैलकुलेट करके देखो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. पॉजिटिव आ रहा हो तो फिर आगे बढ़ना है, नेगेटिव आ रहा हो तो कम करना है. फिर अभी आप मुझ पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. राइट? कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम यूजिंग आरआर मेथड. कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम यूजिंग आरआर मेथड. जैसे मैंने कल आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में बताया था कि उसे हम आरआर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आज आप घर जाके उन सारे क्वेश्चन को होमवर्क करेंगे आरआर मेथड से. ठीक है? ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर that is assumed 9% to begin with. Under that 2 column, discounting factor, discounted cash flow. Discount rate 10%. Under that 2 column, discounting factor, discounted cash flow. एग्जाम में दोनों मेथड से सॉल्व नहीं करना है, एक मेथड से ही सॉल्व करना है, जो भी मेथड आपको समझ में आ जाए और जिससे आपको लगता है आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. ईयर 0 में कैश फ्लो लिखना है आपको 925 इन ब्रैकेट. 125 कूपन अमाउंट लिखना है 80 और 5th ईयर में 1000. अभी 9% डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे ईयर 0 के लिए 125 फैक्टर 3.8897 and 5th year 0.6499. Now multiply and add also. Multiply and add. So it comes to 36.076 negative, positive. Approximately 36.07 या 08 आ रहा है. Okay.
तो यानी हमें क्या करना चाहिए, डिस्काउंट रेट इंक्रीज करना चाहिए। पॉजिटिव आ रहा है, हमें 0 तक पहुंचना है, तो 10% लेकर देखते हैं। अगला डिस्काउंट रेट 10% लेकर देखते हैं। ट्रायल एंड एरर, बहुत ज़्यादा ट्रायल नहीं करना 0 तक पहुंचने के लिए, ना तो 6 महीने बाद ही फिर जाके आंसर 0 आएगा। 10%, एक हायर रेट ट्राई करते हैं, देखो कितना आ रहा है आंसर। आप 10 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि 10 ही लेना है आपको। करो सॉल्व। नेगेटिव आ रहा है कितना, अराउंड 0.836 और 84 आ रहा है, यानी 0 के काफ़ी क्लोज पहुंच गया ऑलरेडी। यानी आप ये बोल भी सकते हैं कि आंसर अप्रोक्सीमेटली 10% है, क्योंकि दैट इज ऑलमोस्ट 0 ओनली। इज द आंसर 0.836। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा और एक्यूरेट आंसर निकालते हैं। अब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला देखिए क्या है, YTM इज इक्वल टू स्टार्ट रेट यानी the lower of the two rate. Which was the lower rate? 9%. Plus surplus. What is surplus here? The NPV at the lower discount rate upon surplus plus deficit. What is deficit here? The NPV at the higher discount rate into end rate. End rate means the higher of the two rates minus start rate. Different authors use different terms for the same formula. Some authors can write like this also. YTM is equal to lower discount rate plus NPV at lower discount rate upon NPV at lower discount rate plus NPV at higher discount rate into higher discount rate माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। अगर आपको ऐसे लिखने की आदत है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आदत छोड़ना नहीं है, ठीक है। और भी तरीके हैं लिखने के, आंसर सेम आता है, जैसे जो करना करो। आरआर निकालने के एक दो और भी अलग अलग तरीके हैं फॉर्मूला लिखने के, क्रॉस भी कर सकते हैं। अब सॉल्व करो या क्रॉस करो, लेकिन आंसर सही बताओ। यस, आंसर 9 पॉइंट। लेट अस लर्न हाउ टू पुट द वैल्यूज। 9 वेट 9 प्लस surplus 36.076 NPV at the lower discount rate upon 36.076 प्लस नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है हायर डिस्काउंट रेट पे, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू 0.836 into 10 minus 9 into 10 minus 9. So what is the answer? Yes, 9.98%. As I said, it is approximately 10% only. एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, स्टूडेंट जो कुछ लोगों ने माइनस साइन लिख दिया था लिखते समय, माइनस नहीं लिखना है, प्लस लिखना है, क्योंकि हम दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस लिखते हैं। यानी अगर डिस्काउंट रेट 1% से चेंज हुआ तो एनपीवी कितने परसेंटेज से चेंज हो रही है। डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर डिस्काउंट रेट 1% से चेंज हुआ तो एनपीवी कितने अमाउंट से चेंज हो रही है। तो पहले पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हो गया, तो जो चेंज होगा वो उन दोनों का टोटल होगा। इज इट राइट? अगर दोनों पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव लिखना है। फिर एक बार और याद रखना, अगर दोनों पॉजिटिव आ गया तो फिर ये फिगर नेगेटिव लिखना है। इज इट राइट? क्योंकि हमें चेंज लिखना है डिनोमिनेटर में, हमें चेंज लिखना है। इज इट राइट?
यानी 1% डिस्काउंट रेट इंक्रीज करने से एनपीवी कितना चेंज हुआ, ये आप यहाँ डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। तो पॉजिटिव से अगर कोई नंबर नेगेटिव हो गया तो चेंज मतलब दोनों का टोटल लेना है। अगर 100 रुपीज बैंक अकाउंट बैलेंस है और आपने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, उसके बाद ओवरड्राफ्ट 100 हो गया, तो कितना अमाउंट विड्रॉ किया आपने? 100 पॉजिटिव था, कुछ अमाउंट विड्रॉ किया आपने, अब ओवरड्राफ्ट हो गया 100। अमाउंट कितना विड्रॉ किया आपने? 100 प्लस 100 या 100 माइनस 100? 100 प्लस 100, 200 रुपीज विड्रॉ किया आपने, क्योंकि चेंज 200 रुपीज का हुआ। पॉजिटिव 100 से नेगेटिव 100 में चला गया, मतलब आपने 200 रुपीज विड्रॉ किया होगा। ओके, तो 9.98%। चलिए क्वेश्चन आपके लिए 15 नंबर, सिर्फ फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कीजिए। A bond of rupees 10,000 bearing coupon rate of 12% and redeemable at 8 years in 8 years at par is being traded at rupees 10,600. पहले तो without solving we will guess what is the answer. Face value is 10,000. Current market price is 10,600. Market price today, present value today is more than the face value. So whether discount rate should be more than 12% or less than 12%? So without solving the answer is less than 12%. यानी जिनका आंसर मैंने देखा कुछ लोग 12 पॉइंट कुछ परसेंटेज लिखे हैं, वो गलत है। सॉल्व चेक करने की जरूरत नहीं, वो गलत है। तो आंसर विल बी लेस देन 12%, क्योंकि इस बार मैंने क्वेश्चन में चेंज किया। इस बार रिडम्पशन वैल्यू कम है,
करंट प्राइस ज्यादा है तो ब्रैकेट में जो अमाउंट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा. ओके, सो राइट डाउन द आंसर. जिन्होंने गलती की आंसर चेक करेंगे. पहले फॉर्मूला लिख लेना है. फॉर्मूला में फेस वैल्यू माइनस करंट प्राइस. फेस वैल्यू 10,000 है, करंट प्राइस 10,600 है, इसलिए सेकंड सेक्शन जो है इस फॉर आंसर में नेगेटिव आएगा. आंसर वुड बी लाइक दिस: 1200 प्लस 10,000 माइनस 10,600 अपॉन 8 years upon 10,000 plus 10,600 upon 2. So that comes to 10.92%. अभी ठीक है? Okay, those who have done will go to 16th number problem. अब धीरे धीरे प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा. 16 number question, a rupees 5,000 bond with a 10% coupon rate matures in 8 years and currently sells at 97%. So what is the current price of this bond? Write there in pencil. 97% of 5,000, 4850. तो इस बार करंट प्राइस कम है. फेस वैल्यू 5,000 है, करंट प्राइस 4850 है, तो आपका जो आंसर होगा वो 10% से ज्यादा आएगा. Is this should a desirable investment for an investor whose required rate of return is 11%? क्या हमें ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% हो? तो इसके लिए सिंपल टेस्ट क्या है, आप देखिए इस बॉन्ड से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वाईटीएम कितनी इस बॉन्ड की. अगर इस बॉन्ड की वाईटीएम 11% या उससे ज्यादा है तो आप इन्वेस्ट करेंगे, और अगर इस बॉन्ड की वाईटीएम 11% से कम है तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमारा हर्डल रेट 11% है. देखते हैं क्या हम 11% क्रॉस कर पाते हैं. नहीं, कितना आ रहा है? 10.5 समथिंग. ओके, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला लिखने के बाद यू राइट डाउन द फिगर्स लाइक दिस. Solve. After solving carefully, the answer is 10.53%. So write the conclusion. When they are asking you some decision making question, you have to write the decision. Whether the investor should invest in this bond if his required rate of return is 11%. So the investor should not purchase the bond as the YTM is less than the required return. Investor should not purchase the bond as the YTM is less than the required return. Okay, now we'll take one exam question, 5 mark compulsory question. Question number 17. नंबर हो गया आंसर. 16 नंबर इज ओवर. कम टू 17 नंबर प्रॉब्लम. नाउ द प्रॉब्लम इज लिटिल डिफिकल्ट. टैक्सेशन इज इंट्रोड्यूस नाउ. पहले 3 क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं था. There is a 9% 5-year bond issue in the market. The issue price is rupees 90 and the redemption price is rupees 105. इशू प्राइस कितनी है? 90 रुपीज है. यानी आज इस बॉन्ड की करंट प्राइस 90 है और रिडम्पशन प्राइस 5 साल के बाद 105 रुपीज है. कूपन रेट 9% है. फॉर एन इन्वेस्टर विथ मार्जिनल इनकम टैक्स रेट ऑफ 30%. That is, tax on his normal income is 30% and capital gain tax rate of 10%. Capital gain tax rate is 10%. While calculating the capital gain tax, ignore indexation. Assume no indexation.
सो कैपिटल गेन कितना होगा, इसको 105 में आप रिडीम करोगे, 90 रुपीज़ पे आप बाय करोगे, तो 15 रुपये कैपिटल गेन होगा, उस पर 10% टैक्स लगेगा, 1.5 कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना आपको। What is the post tax yield to maturity? That means this time to calculate what is his rate of return after considering tax implication post tax. इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, तो क्या अज्यूम करेंगे, इशू प्राइस 90 है, रिडम्पशन वैल्यू 105 है, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं फेस वैल्यू इज 100 रुपीज फॉर कूपन कैलकुलेशन। कूपन विल बी कैलकुलेटेड ऑन 100 रुपीज। सो नॉर्मली अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू नहीं दी हो लेकिन प्राइस 100 के आसपास हो तो 100 अज्यूम करना है, 1000 के आसपास हो तो 1000 अज्यूम करना है, क्योंकि बॉन्ड 90 रुपीज फेस वैल्यू का या 105 रुपीज फेस वैल्यू का जनरल इशू नहीं होता है, 100 का होता है, 500 का होता है, 1000 का होता है, 10,000 का होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अज्यूम फेस वैल्यू इज ₹100। अब इसके बाद आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। मैंने आपको बहुत सारे हिंट दे दिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। नाइन 9.3%, 9.3, 29, 9.3 लाना है। कोशिश करो, गलत हो गया कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, कम से कम इसी बहाने कोशिश तो करेंगे। 4-5 लाइन वेस्ट होगी और क्या होगा। द आंसर इज 9.3%। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? कोई बार्गेनिंग नहीं करनी है, 9.3%। Are we getting 9.3%? कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलिए, नाउ आई विल सॉल्व। इफ यू आर नॉट गेटिंग 9.3%, आई विल सॉल्व इट। पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट रिडम्पशन वैल्यू। इस बार नेट रिडम्पशन वैल्यू 105 नहीं लेना है आपको, 105 आपको मिलेगा ही नहीं, 1.5 टैक्स पे करना है आपको, ओके। तो कुछ स्टूडेंट ने 105 लिख के सॉल्व किया है, नहीं लेना आपको, 103.5 लेना है। इसलिए मैंने बोला था कि मैंने आपको हिंट दिया है, 1.50 टैक्स पे करने के बाद आपको मिलते हैं 103.5। ओके, सॉल्व। राइट हैंड साइड रुपीज, टैक्स पे करने के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो आपको लिखना है नेट रिडम्पशन वैल्यू में। रिडम्पशन वैल्यू इज 105, राइट हैंड साइड रुपीज। पॉइंट नंबर बी, इशू प्राइस इज 90, इशू प्राइस इज 90, कैपिटल गेन 15, ए माइनस बी, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन कैपिटल गेन 10% ऑफ 15, 1.50, so what is the net redemption value? 103.5। तो जहां जहां आपके फॉर्मूले में रिडम्पशन वैल्यू यूज करना है, एक न्यूमरेटर में यूज करना और एक बार डिनोमिनेटर में यूज करना है।
दोनों जगह 103.5 लेना है, दोनों जगह 103.5 लेना है। कुछ लोगों ने सिर्फ न्यूमरेटर में 103.5 लिया, डिनोमिनेटर में 105, कुछ लोगों ने दोनों जगह 105। सोचा जाने दो, टैक्स छोड़ो, जाने दो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ देना है, एडजस्ट नहीं करना है। बाकी खेल वही है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ YTM, इस बार फॉर्मूले में हम लिखेंगे C इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस इशू प्राइस अपॉन N अपॉन RV प्लस NP बाई 2 और IP यानी इशू प्राइस। जो भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे नीचे में उसका फुल फॉर्म लिख देना है, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद नीचे फुल फॉर्म लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ यू पुट द डेटा इन दैट फॉर्मूला, both places 103.5 you will write. After putting the formula and the data, now you calculate how much you are getting. So around 9.30% you will be getting approximately, because this is formula method. आप इसको एज ए होमवर्क YTM RR मेथड से ट्राई करेंगे, तो थोड़ा सा हाफ पेज ब्लैंक रखना है और RR मेथड से ट्राई करेंगे इसी क्वेश्चन को होमवर्क। ओके, स्टार्ट रेट 9% लेंगे, एंड रेट 10% लेना आप, क्योंकि आंसर आपको मालूम है 9.3 है, तो RR मेथड से भी आंसर 9.3 के आसपास ही आएगा। हाफ पेज ब्लैंक रख के इस प्रॉब्लम को आप ये RR मेथड से ये फॉर्मेट ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे। Now I'll give you one more problem for your practice in the class. RR मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर 9.49% आएगा, जरा लिख के रख लो। इस क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम RR मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 9.49% आएगा। जस्ट लिख के रखना है, जिनको इच्छा हो वो घर जाके RR मेथड से ट्राई करेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए फिर से 18 नंबर। एक्चुअली यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो बॉन्ड्स हैं, दो बार सॉल्व करना है। यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द बॉन्ड्स, बॉन्ड A, कूपन रेट 12%, मैच्योरिटी पीरियड 10 years, प्राइस इज 700 rupees एंड फेस वैल्यू इज हाउ मच 1000। फेस वैल्यू 1000 है, उसकी आज मार्केट प्राइस 700 rupees है। बॉन्ड भी 10%, कूपन रेट 6 year, 600 rupees इज प्राइस, उस फेस वैल्यू इज 1000। टैक्स रेट इज 30%, कैपिटल गेन इज 10%। सो कैपिटल गेन कितना होगा पहले वाले बॉन्ड पे? 700 में बाई करोगे, 1000 में रिडीम होगा, 300 रुपए का कैपिटल गेन है यहाँ पे, 10% टैक्स लगेगा, 30 rupees टैक्स, तो 970 नेट रिडम्पशन आएगा, 970 आएगा। दूसरे बॉन्ड में 600 में बाई करोगे, 1000 में रिडीम होगा, तो 400 रुपए का कैपिटल गेन होगा यहाँ पे, उस पर 40 rupees कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो नेट रिडम्पशन वैल्यू होगी 960। नेट रिडम्पशन वैल्यू 970 होगी पहले वाले बॉन्ड में और 960 होगी दूसरे वाले बॉन्ड में। और ये जो कूपन मिलेगा इस पे आपको 30% टैक्स लेस करना है, तो 12% ऑफ 1000 120, उस पर 30% टैक्स लेस करना है, और दूसरे वाले बॉन्ड पे 10% ऑफ 1000, उस पर 30% टैक्स लेस करना है। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे, 1 मिनट के बाद आंसर चेक करना है। रुको यार, तो बाकियों को भी मौका दो थोड़ा। ट्राई, अदर्स विल ट्राई। बिल्कुल जैसे हमने अभी पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ नंबर्स चेंज करने हैं आपको। आप ही कोशिश करेंगे।
नेट रिडम्पशन वैल्यू के लिए एक वर्किंग नोट बना सकते हैं सिर्फ। इज इट ओवर? फर्स्ट बॉन्ड का आंसर कितना आ रहा है? 13 पॉइंट, बॉन्ड ए 13.29%, एवरीबडी, एंड बॉन्ड बी 16 पॉइंट। $13.29 and 16.67, note down. 13.29, 16.67. Everybody note down those two numbers. 13.29, 16.67%. और फॉर्मेट सॉल्व करने का बिल्कुल वही है जो 17 नंबर में हमने सॉल्व किया है। अभी एक और कंसेप्ट आज आप सीखेंगे, करंट यील्ड। Current yield means it is the annual coupon payment. It is the annual coupon payment divided by bond price. Current yield means the rate of return earned by comparing the annual interest which is currently paid on the bond with the current market price of the bond. Is it right? आपकी बुक में देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, एनुअल इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस, दैट इज कॉल्ड द करंट यील्ड। नाउ if you look at this formula carefully, it gives you a quick idea about how much rate of return you are earning. Quick idea, यानी IRR निकालने के लिए आपने देखा कितनी मेहनत है, कभी कभी इतनी मेहनत करके भी गलत हो जाता है। रिडम्पशन वैल्यू की जगह इश्यू प्राइस लिख देते हैं, इश्यू प्राइस की जगह रिडम्पशन वैल्यू लिख देते हैं। तो करंट यील्ड मेथड में आपको क्या करना है, एक क्विक आंसर अगर जज करना है कि इस बॉन्ड्स पे कितना रिटर्न हो रहा है, तो हम एनुअल इंटरेस्ट लेंगे और करंट मार्केट प्राइस लेंगे। बट दिस मेथड हैज गॉट सम लिमिटेशंस। पहले एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, वहीं पे लिखा हुआ है। सपोज एनुअल इंटरेस्ट रेट 15% है, करंट मार्केट प्राइस 97 है, और आपको जल्दी से रिटर्न एस्टिमेट करना हो तो आप बोलेंगे कि हमें 15 रुपये मिल रहे हैं 97 के इन्वेस्टमेंट में, ऐसे ही बोलोगे ना। 97 रुपीज इन्वेस्ट करने पे 15 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रिटर्न कितना मिला आपको? करंट रिटर्न कितना मिला? 15/97, 15.46%। लेकिन ये मेथड जो है रिटर्न कैलकुलेट करने का, ये
बहुत अच्छा मेथड नहीं है. द रीजन बीइंग you are ignoring one time value of money, you are ignoring the capital gain or capital loss, because return is affected by not only the coupon rate but also by the capital gain or capital loss. Suppose the same bond is redeemable after 5 years at 10% premium, the return would have been much higher than this what you have calculated. लेकिन इस कैलकुलेशन में हम रिडम्पशन वैल्यू को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं कैलकुलेशन में, उसकी वजह से जो कैपिटल गेन और लॉस हो रहा है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं. सो देयरफॉर दिस मेथड डज नॉट कंसीडर द कैपिटल गेन और लॉस एंड इन्वेस्टर विल रियलाइज इफ द बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी. देयरफॉर इट इज अ सिंपलिस्टिक मेजर ऑफ यील्ड. So generally not to be used for long-term investment purpose, because we are not considering the capital gain or loss that will arise if you hold the bond till maturity. Anyway, so that is also one concept used in this chapter. Now you solve 19th number problem. 19th number. 9% is the coupon rate. Current market price is 112. Face value is 100. So write down the answer. Current yield is equal to 9 divided by 112 into 100. 9 upon 112 into 100. 100 is for converting into present percentage. ये 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, फेस वैल्यू नहीं है वो. 8.04%. अब एक क्वेश्चन आपने बीच में छोड़ दिया था आधा अधूरा, 9th नंबर. ओके, आ जाइए 9th नंबर पे. 9th नंबर क्वेश्चन, देयर इज अ पार्ट 2 विच यू हैड नॉट आंसर्ड दैट टाइम. क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 35. व्हाट इज द करंट yield of the bond? First you will try, then I will answer. Current yield is equal to, आज इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस, एनुअल इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस. सो आज यानी ईयर 0 में हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो कितना लिखेंगे? 45 लिखेंगे. 45. और आज मार्केट प्राइस कितनी है? 401.12. ये आंसर आपने लिखा था. ये आंसर आप ऊपर वाली टेबल के लास्ट कॉलम का टोटल देखिए, 401.12 है. और फर्स्ट ईयर में आपकी बॉन्ड की इंटरेस्ट कितनी है? 45 है. इज इट 45? 9% of 500 into 100. So the answer is 11.22%. So that is answer. बस इतना लिख दीजिए नीचे वाले बॉक्स में. 11.22% write down. Is it right? So we'll continue tomorrow. If you have time, try 20, 21, 22. ट्राई करना है सिर्फ.